Hello dear aspirants, so I hope you all are enjoying the concept talk series. In today's concept talk, the part is 2, but it is very fantabulous because if you're not doing this part, then the previous concept talk has no meaning at all. Okay? The thing is, if you want to summarize something, if you want to prepare in right way, you have to be very much systematic in nature कि हाँ चीज़ों को कैसे पढ़ना है करके. So today's target, today's agenda is we will talk about the position of equilibrium is stable or unstable. ठीक है? In different scenarios, and those scenarios I told you कि there we will be having 3 scenarios out of that, right? If you haven't attended the concept talk equilibrium, please attend that first because this is in continuation of that. Although if you are not interested at all कि नहीं यार मेरे को conceptual clarity पता है, तो ये lecture आपके लिए isolatedly भी work करेगा, not an issue in that. ठीक है, चलिए let's move on now. So position of equilibrium is stable or unstable. We will be doing the problem solving techniques today. So this session is gonna be like focused on how this particular topic is to be dealt, no matter for which of the exam, be it CSE or forest services you are preparing for. Clear? आगे बढ़ते हैं. Dear fellows, if you talk about our this chapter stable and unstable equilibrium, तो हम उसको वापस से इसी टाइप से लिखेंगे. Position of equilibrium, we are interested in knowing कि whether it is stable or it is unstable. Fair? As far as our exam is concerned, we have 3 different categories over which we have to have a better understanding. I am saying it is one time investment, not more than that. ठीक है बात? तो जैसे देखिए ध्यान से, when you talk about category 1, so in category 1 we are interested in the configuration like this. Okay, we are interested in configurations like this. 2 curved surfaces are in contact. That is the category 1. Means I want to set up the relation. Let's say this is capital R. Let's say this is a small r. This is the point of contact. This is the height of CG. So NG क्या है? NG is nothing but height of center of gravity of upper body. बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ ये चीजें सीखने की जरूरत है क्योंकि एक ही बार इन्वेस्ट करना है टाइम एंड एनर्जी, उसके बाद फिर नहीं करना पड़ेगा. So height of CG of upper body from the point of contact. Fair? Capital R is what? Radius of the lower body. Small r is the radius of the upper body. यही है. चलिए, तो अगर इस टाइप का फिनोमेना है, so what should be the relation between? Now, in what we are interested? We are interested in setting up a relation
between H small r and capital R to get the above answer. What are the questions? These are the questions. कि position of equilibrium of the upper body is stable or unstable. So what is stability? Means if I give a tilt to the upper body, it comes back in its original position, then that position of equilibrium is stable. If after a tilt body leaves its position of equilibrium, that is means उसका मीनिंग क्या है? The position of equilibrium is unstable. Here it is. कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? आई होप नो. चलिए बोर्ड पर आइए आप लोग. अब कैटेगरी 1 के लिए हम क्या करेंगे? डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. ठीक है. एंड कैटेगरी 2 में क्या होगा? देखिए ध्यान से. कैटेगरी 2 के अंदर वी विल हैव द सिनेरियो लाइक दिस. कैटेगरी 3 इज फॉर जनरल बॉडीज, नीड नॉट बी स्फेरिकल. ठीक है. रो 1 रो 2 विल कम इनटू द पिक्चर. फेयर? समथिंग लाइक दैट. So category 2 and 3 will be just reflection if we have put honest efforts. तो honest effort रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक बार अभी रिसेंटली ही उसने इसका प्रूफ भी पूछा है आर्टिकल 3 वाले का. तो अगली बार बहुत चांस है कि आर्टिकल 1 वाले का, कैटेगरी 1 वाले का प्रूफ आपसे पूछ लिया जाए. Over the history of this exam, they have been asking continuously those different kind of questions possible out of that. So what I felt always about this exam process, you cannot ignore anything. Anything doesn't mean कि अपने को जिंदगी भर पढ़ते रहना है. Not at all. If you have attended the previous concept talk, you would have realized what is this chapter all about. If you are attending this concept talk, within the 20 minutes, you will realize what is the crux needed, how to solve problems, how to do the proofs. If you attend one more concept talk on practicing the problems, the job is done. So 100 minutes का investment can make this concept consolidated according to demand of CSE and forest services. कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर. Choice is yours कि आप पेशेंस के साथ चीजों को सीखने में कितना विश्वास रखते हैं. ये बोला क्यों? क्योंकि अब मैं आर्टिकल 1 को बहुत ही ब्यूटीफुली डेराइव करने जा रहा हूं. एक एक पॉइंट को डिकोड करूंगा. आई विल टेक प्रॉपर टाइम इन दैट. इफ यू फील कि मास्टर बोर कर रहा है तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर वीडियो और यू जस्ट स्किप दिस, क्योंकि आपको केवल फॉर्मूला टाइप का स्टडी चाहिए. प्रूफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. फॉर्मूले वाले में भी बैंड बच जाएगा, क्योंकि वहां पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी कि ये रिलेशन पे वर्क कैसे करना है, किसको स्मॉल आर लेना है, किसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है. तो मैं वो आर्टिकल करने जा रहा हूं. अब आप देख लीजिए, चॉइस आपकी है. ठीक है. सो लेट्स हैव दैट. आराम से करूंगा, एकदम बी काम एंड कंपोस्ट. मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट को डिकोड करना है मुझे. ठीक है. चलिए. सो लेट्स हैव दैट आर्टिकल नाउ. आर्टिकल 1 इज ऑल अबाउट. तो पहले तो हमें स्टेटमेंट उसका चाहिए होगा. व्हाट इज द स्टेटमेंट? देखिए, स्टेटमेंट भी लिखेंगे, एक एक कीवर्ड को डिकोड करेंगे हम. ठीक है. क्योंकि एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है दोस्त. ए बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम. A body rests in equilibrium. देखिए पोजीशन आ गया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर बॉडी. ठीक है. अपॉन अनदर बॉडी which
उसके बारे में क्या बोला? विच इज फिक्स्ड। ठीक है, मान लो ये अर्थ प्लैनेट है विच इज फिक्स्ड, और अर्थ के ऊपर में आपने एक चंद्रमा रख दिया है। चंद्रमा के बारे में यू हैव दिस, अर्थ के बारे में कि अर्थ चलो फिक्स है। मैं एक इमेजिनेशन बोल रहा हूं, डोंट थिंक कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है सर, आपने गलत बोल दिया करके। चलिए, विच इज फिक्स्ड, द पोर्शंस ऑफ टू बॉडीज, the portions of two bodies in contact, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, being spheres, देखिए कांटेक्ट की बात मैंने की थी आपको पिछले कॉन्सेप्ट टॉक में भी, being spheres of radii स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, कीवर्ड मिला या नहीं? स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हियर आई माइट हैव द पीपीटी एज वेल। उसमें भी एक एक वर्ड पे इतना फोकस करके सर्किल करते करते टाइम उतना ही जाता है, ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने हर चीज को ट्राई किया हुआ है। फिर एक स्टूडेंट की तरह मुझे जो पसंद आया वो ये है कि भाई आराम से डिकोड करिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आप में से कई सारे लोग पेशेंस लूज करेंगे, और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर टीचर ने इतना अपना अनुभव पोर कर रहा है और वो आप मिस करें, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, फिर बाकी आपकी चॉइस है। एंड द स्ट्रेट लाइन, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड क्योंकि इसको जितना डिकोड कर लेंगे प्रॉब्लम्स उतनी ही आसानी से चमकने लगेंगी। ठीक, एंड द स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग दीज टू बॉडीज के सेंटर्स, एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स कैसे है? वर्टिकल है वो लाइन, आर वर्टिकल। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। सॉरी, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट सुनिए आप, इफ द फर्स्ट बॉडी, अब कहानी शुरू होगी इस पूरे की। इफ द फर्स्ट बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, आई गेस जिन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड कर रहे हैं उनको भरपूर आनंद आना शुरू हो गया होगा। भरपूर आनंद कह रहा हूं, थोड़ा बहुत भी नहीं। ठीक है, बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड, नाउ वी आर इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्टेड है? फाइंडिंग वेदर दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। कंस्ट्रेंट दे रखा है कि द बॉडीज बीइंग रफ एनफ, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है ये, bodies being rough enough to prevent sliding, अंडरलाइन कीजिए इसको, the bodies being rough enough to prevent sliding। ठीक है, अब वो अगर मान लो स्लाइड ही कर जाएंगी फिर सिस्टम का कोई जोर ही नहीं रहेगा, वो तो फिसलती चली जाएगी, कुछ भी रहेगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट को लिखने के पीछे मेरा जो मकसद था प्यारे बच्चों, वो ये था कि आप कॉन्सेप्ट्स डिकोड करने में अगर अपनी एनर्जी डालेंगे, प्रॉब्लम्स में एक एक पिक्चर क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगेगी। एक एक पिक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है उनको वापस से एक बार देखिए। अब
अब हमें इसका मान लो करना है प्रूफ या आंसर, क्योंकि हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज ज्योमेट्रिकल सेटअप ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द ज्योमेट्रिकल सेटअप। अब इसके केस में जितना आप शांति से आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। एक एक प्रॉब्लम डिकोड होती चली जाएगी, एक एक कीवर्ड, सॉरी। ठीक है, चलिए लेट मी डू इट फॉर यू। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। सो अपने पास है, मान लो यहां पे हमने ले लिया ये पूरा स्फीयर अपना, हो सकता है हमने केवल इसको बेस मान लिया है। ठीक है, ऊपर वाला जो है हमारे पास उसको स्फीयर ये मान लिया। ठीक है, सेंटर्स आर वर्टिकल, समझ आ रहा है? The straight line joining the centers that is vertical। तो क्या डिकोड हुआ कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल सेटअप करने जाएं, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी। अगर ये अंडरलाइन जिस पे ग्रीन कलर किया है, अगर ये नहीं दिया होता तो ये सेटअप इस टाइप का भी हो सकता था, हो सकता था या नहीं? बोलिए। तो उसने दे दिया, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ गए। अब उसने क्या कहा है कि दिस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अब ये जब स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है तो नई पोजीशन के लिए क्या कहानी बनेगी, लेट्स डू दैट नाउ। ठीक है, लेट्स से दिस इज द पोजीशन। छोटा हो गया क्या? आराम से। लेट्स से दिस इज द न्यू पोजीशन। अब बात बन गई। लेट्स से दिस इज द सेंटर, यहां से इफ आई डू दिस, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट H। इसके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, CG पर बात करनी पड़ेगी। तो मान लो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G1 पर है। अब जब मैंने टिल्ट कर दिया है इसको तो ऑब्वियसली इसका CG यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। सो लेट्स से दिस इज द CG G2। ओके, लेट्स से दिस इज द पॉइंट E। क्लियर? अब G2 जो है इससे मैंने इस पे वर्टिकल डाल दिया है। जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा, दिस इज G1, लेट्स से दिस इज, ये G2 है, G2 से इस पर वर्टिकल डाल दिया, ये पॉइंट E है, परपेंडिकुलर है ये, बाद में हम इसको कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज F। लेट्स से दिस इज D, DF जाएगा EF के बराबर। बहुत बढ़िया, G2B हो गया, दिस इज X एक्सिस। चेक द कन्फिगरेशन प्लीज, बिकॉज अदर थिंग्स विल बी नाउ द सेकेंड स्टेप टू डू। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द ज्योमेट्रिकल सेटअप ऑफ द प्रॉब्लम। और ये आपको आराम से करना है, बिल्कुल पहली बार में चमकेगा नहीं, सपने में नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के बाद आएंगी ये चीजें, और प्रैक्टिस जब आपने अंडर द राइट गाइड इन द राइट वे किया होगा तभी आएगा। ठीक, अब आप पूरे इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए और देखिए कि इस ये है दूसरा पोजीशन है, दैट इज आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, दिस इज द पोजीशन आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेस्ड।
क्लियर है बात? कोई तनाव है तो कहिए। अब क्या होगा स्टैटिक्स में बच्चे बोलते हैं, मुझे तो बस सुनने में आया है कि उपेंद्र सर ने बोला है स्टैटिक्स में ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन लगाकर, अगर आपको फॉर्मूला पता है, एक तो फॉर्मूला सेटअप जो अभी हम करेंगे वो याद रखिए, बाकी 90% गेम जो है ना वो है 10th लेवल या 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का। ठीक, नोट कर लीजिए आप भी, और 100% एग्जाम पॉइंट की तरह अपने दिमाग, अपनी मेमोरी में छाप लीजिए इसको। स्टैटिक्स इज ऑल अबाउट 10th लेवल ज्योमेट्री, 10% कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद एवरी प्रॉब्लम विल बी डेल्ट लाइक दिस, एवरी चैप्टर के अंदर मैं कह रहा हूं, और नहीं तो थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ you are gonna realize that as क्लियर है। अब now I am interested कि whether this height, क्योंकि हम इस बेस से इसकी हाइट चाह रहे हैं, let's say this is z or h, whatever you want to take, you can take, not an issue. This z is maximum, क्या करेंगे, if z is maximum, z is minimum, अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर मिनिमम है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, डोंट फॉरगेट टू अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक इन विच वी हैव डन दिस ब्यूटिफुली। इज दैट फेयर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? रत्ती भर भी दिक्कत है तो बताइए। Shall I move now? अब जो मैथमेटिक्स है, यहां पर जो 10th लेवल का ज्योमेट्री है, उसके लिए कैलकुलेशंस मैं आपको यहां पर करके दे रहा हूं। एक दो बार अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली ईमानदारी से बच्चा लोग की तरह, द जॉब इज एनफ, यू विल हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एट योर लेवल। क्लियर है अभी? सो डू यू परमिट टू गो फॉर फर्दर? अगेन बहुत स्लो करूंगा, एक एक चीज को वहां पर लिखूंगा, ठीक है? चलिए, सो लेट्स यूज दिस स्पेस नाउ। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। सो व्हाट आई टॉक अबाउट दिस इज, अभी इसका इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लिख देते हैं, इसके बारे में है क्या क्या ये, ठीक है? सो हमने O ले लिया है सेंटर, ये है O डैश, ठीक है? O जो है वो सेंटर ऑफ लोअर स्फीयर है, O डैश इज द सेंटर ऑफ अपर स्फीयर, ठीक? उसके बाद में G1 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर बॉडी, जब एक्चुअल पोजीशन में है बॉडी तब, ठीक है? G2 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर बॉडी आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, राइट? और क्या लिया हमने? G2 हो गया। अब क्या है? अब देखिए आपने इस स्फीयर को थोड़ा सा टिल्ट किया है, राइट? तो ये जो आर्क DF होगा वो इस आर्क EF के बराबर होगा या नहीं? गेटिंग? So what you will write here, that is the mathematical requirement now, so I'll change the color here. So arc, अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा आर्क DF इक्वल्स आर्क EF। इसको हम फर्दर यूज कर लेंगे अपने मैथमेटिकल सेटअप में। क्लियर है अभी बात? अब चलते हैं मैथमेटिकल सेटअप की ओर। चलिए, so the thing is, अपने पास है OD, मेरे पास वो फिगर है, मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूं यहां पर। सो OD इज कैपिटल R, O डैश D इज स्मॉल r, EG2 इज स्मॉल h, ठीक है? EG2 ले रखा था। G2B इज परपेंडिकुलर टू CH, उस फिगर के लिए। लेट एंगल DOF थीटा ले रखा है। ये सारी चीजें यहां से ले रहा हूं मैं इस फिगर से, ठीक है? उस फिगर को बना रखा है। सो दिस इज थीटा, दैट इज एंगल OCH बाय द ज्योमेट्री ओनली। सिंस R इंटू थीटा इज स्मॉल, अच्छा फाई लिखना भूल गए वहां पर,
So phi is the angle if you talk about ECO. ECO कहाँ गया? This वाला angle is phi. ठीक है? So that is becomes this like. So इसको जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे. ठीक? phi हो गया. Let Z be the, अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको फटाफट कर देते हैं. Let Z be the height of G2 above the line OX, मतलब x एक्सिस के ऊपर से. ठीक है? सो Z क्या हो जाएगा अपने पास? Z इक्वल्स CH माइनस CB as G2B is parallel to OX. So this will be converted to OC cos theta minus CG2 cos theta plus phi. The calculation you can note it down. इसमें अपने को बहुत ज़्यादा कोई माथापच्ची है नहीं. Again I would like to say, if you are interested, सीधा सीधा इसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा हूं, तो बहुत पैनिक नहीं करना है उसके लिए. cos थीटा माइनस फाई. ठीक है? cos थीटा प्लस. ठीक है? सो लेट्स गिव दिस एज कितना नंबर 3. ठीक है? सो यूजिंग 2 क्या मिल गया अपने को? इसमें यूज कर दिया इसको. ठीक है? इस वाले में हटा देते हैं. यूजिंग 2 वी गॉट दिस. नाउ वी आर इंटरेस्टेड, ध्यान से देखिएगा, इन किस में इंटरेस्टेड है अब हम? गेटिंग मैक्सिमा मिनिमा ऑफ Z, वेयर Z इज अ फंक्शन ऑफ, हमें किसके बारे में चाहिए? अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट, इस थीटा पे ही तो कहानी डिपेंड करेगी कितना टिल्ट मारना है. याद कीजिए कॉन्सेप्ट टॉक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला. इस थीटा के ऊपर ही तो सारी कहानी का झोलझाल है. अब इस थीटा के ऊपर पूरी कहानी तो dz अपॉन डी थीटा करेंगे, ना कि dz अपॉन डी फाई. राइट? चले, सो लेट्स हैव द पार्ट हियर, कैलकुलेशन पार्ट. So I'm writing that frequently here. dz upon d theta here is, that is minus का कहाँ गया? For maxima minima dz upon d theta must be 0. For maxima minima dz upon d theta, so this implies dz upon d theta इसका कीजिए minus r plus r cos theta. सॉरी, ज़्यादा जल्दबाजी हो गई है ना. माइनस r plus cos theta का sin theta. राइट? प्लस r माइनस एच, तो वापस से माइनस r माइनस एच साइन थीटा प्लस फाई. इसको 0 पुट कर दीजिए. वी विल गेट सम एंगल फॉर हियर इज थीटा का वैल्यू. तो अपने को जो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज वी आर गेटिंग फॉर दैट. फिर उसके बाद d2z ओवर डी थीटा स्क्वायर फाइंड कीजिए. अब आप चेक कर लीजिए कि d2z ओवर डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, या d2z ओवर डी थीटा स्क्वायर लेस देन 0 है, या d2z ओवर डी थीटा इक्वल टू 0 है. क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में यही कहानी है. अब जब आप इन एक्सप्रेशंस के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल बी गेटिंग सम कंडीशंस एंड फॉर विच वी वर ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स. यार ये आर्टिकल है क्या? अब इसके बाद में यहां पे इफ यू एक्सपेक्ट कि सर मास्टर साहब अच्छा पूरा पूरा लिख देते, इफ यू आर इंटरेस्टेड एनफ, क्योंकि मैं यहां डिकोडिंग कर रहा हूं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीडीएफ्स, डू लेट अस नो, वी विल श्योरली शेयर विद दोज पीडीएफ्स विथ यू. फेयर? चलो, सो एग्जाम पॉइंट अपने को जो यहां पर मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमा होगा तो अनस्टेबल, मिनिमा होगा तो स्टेबल. इक्वलिटी के केस में अपने को वापस से d3z अपॉन डी थीटा क्यूब, अगर वो भी इक्वल तो d4z अपॉन dz4 इसका साइन चेक करना होगा. राइट? सो व्हाट इज द एग्जाम पॉइंट वी गॉट हियर? स्टेबिलिटी के केस में इफ 1 अपॉन h इज ग्रेटर देन 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन कैपिटल R, इट इज अनस्टेबल if 1 upon h is less or equal to 1 upon small r plus capital R. So I have tried my best
टू मेक यू फील कि यार स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी में जो ये आपने रट रखा है, विश्वास मानिए इस ज्योमेट्री में मैं बहुत, इस कैलकुलस और इस ज्योमेट्री में मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकता था यहां पर, बट माई इंटेंशन वॉज समथिंग डिफरेंट हियर। माई इंटेंशन वॉज, मैंने वो टाइम यहां ना कर लगा के कहां लगाया, एक एक की वर्ड को डिकोड करने में। से यस और नो, किया या नहीं? फिर जब हम ज्योमेट्रिकल सेटअप करने गए तो बहुत आराम से एक एक चीज को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर जो भी वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, जिसको भी हम अंडरलाइन करते आ रहे हैं, हर चीज का मतलब है। बोलो हाँ या ना, आराम से बोलिए, देख लीजिए, आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से सोचिए इसको, और फिर सोचिए कि कितने एफर्ट्स, 10 मिनट के एफर्ट्स में क्या प्रोडक्टिविटी पाई है हमने। ठीक है, अब हम यहां आए, ये वाला काम तो आप रट्टा मार जिंदाबाद में हमेशा रखते ही हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट is nothing if you don't solve problems based on that, right? So if you are interested in solving problems out of that, do let me know, I will surely go for that. Fair? आज ही करते क्या, पक्की बात है? बोलो अच्छा, आज करना है क्या? टाइम तुम लोग बहुत ले रहे, चलो करते हैं, छोड़ो यार, कर ले क्या? अच्छा, अब आप देखेंगे, उसको छोड़ो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है हमारे पास, इनके बारे में भी अगर आपको इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, डू लेट अस नो, वी विल श्योरली गो फॉर दैट एज वेल। वी वोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस दोज हियर। तो अभी मैं क्या करता हूं, कैटेगरी 1 पर ही, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने कैटेगरी 1 में बना ली आर्टिकल 1 पे, तो बाकी 2 आर्टिकल में जस्ट सेम चीजों के साथ में वो ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है बस वही डिफर करेगा, अप्रोच विल नॉट बी डिफर्ड। डिड यू गेट माई पॉइंट डियर फेलोज? सो व्हाट आई डू इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट आर्टिकल 2 and 3 here, I will take few examples just to make you feel कि यार इस कैटेगरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फेयर? क्योंकि थोड़ा भी अधूरा सा लग रहा है कि सर इसको करके तो दिखाओ, थोड़ा मजा तो आए इसमें। ठीक है, तो जस्ट 5 minutes more I will take from you and let's have that. So let's have an example. ठीक है, just give me few seconds dear fellows, I'll go for examples here. चलिए, write the question please. Example 1, डिकोड करेंगे, आंसर नहीं देंगे, उसका नंबर्स नहीं देंगे, मतलब आंसर भी आएंगे लेकिन डिकोडिंग फॉर्म के थ्रू, है ना। ए हेमीस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, ए हेमीस्फीयर rests in equilibrium, ठीक है, on a sphere of equal radius, ठीक है, so that the equilibrium is unstable. Meanwhile, you can keep on the brainstorming part, okay? So that the equilibrium is unstable when the curved surface rests on the sphere, when the curved surface rests on the sphere, and stable, position of equilibrium is stable when the flat surface of the hemisphere, when the flat surface of the hemisphere
रेस्ट ऑन द स्फीयर। क्या डिकोड किया आपने, बताइए जरा, क्या दिमाग लगाया है सभी लोग, whoever attending the lecture? तो पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हमने किया है, क्या उसका मजा लेने का समय आ नहीं गया है अब? चलिए मैं आराम से करूंगा, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड जस्ट विद इन 1 मिनट, कैन बी रिटन एज वेल, विश्वास मानिए, इट कैन बी रिटन एज वेल विद इन 1 मिनट ओनली। और कैसे, पहले तो डिकोड करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों कह रहा था 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आंसर नहीं, डिकोड करते हैं, डिकोडिंग द गिवन प्रॉब्लम। ठीक, चलिए एक एक करके पढ़िए। ए हेमीस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक हेमीस्फीयर है, रेस्ट ऑन अ स्फीयर, और एक स्फीयर है। ठीक, हेमीस्फीयर स्फीयर पर रेस्ट कर रहा है। अब पोजीशन मेरी ये वाली है, या पोजीशन जो है वो ये है, आराम से देख लीजिए। वॉट, मेरे पास 2 आर्टिकल्स थे, दिस इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। नाउ आई हैव 2 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल आउट ऑफ दीज 2 आर्टिकल्स, राइट और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज इट से? अब हम चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों के दोनों किस कैटेगरी में चले गए? कैटेगरी 1। बोलो हाँ या ना, कहाँ गया? कैटेगरी 1, राइट? चले बहुत एकदम इज्जत के साथ, ठीक है। कैटेगरी 1 के अंदर हमारे पास जानकारी क्या है? हमारे पास जानकारी यह है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा इफ दिस होल्ड्स, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा इफ दिस होल्ड्स। ठीक है, अब स्मॉल आर और कैपिटल आर है क्या, ये आपको याद रखना है, नहीं तो बाजा बच जाएगा फिर। क्योंकि यहां तो ठीक है, अगले वाले कैटेगरी में माइनस साइन आता है, 1/r माइनस 1/कैपिटल आर वाला टाइप। तो जब माइनस साइन आएगा तो बैंड बच सकता है कि आपने लोअर बॉडी को कौन सा रेडियस लिया है और अपर बॉडी को कौन सा रेडियस लिया है, टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। आर यू गेटिंग माई सेंस और नॉट? सो इफ यू ऑब्जर्व, यहां पर हमने कहां गए, किसको कहां गया, G1 हो गया, OG1 हो गया, ये हो गया कैपिटल आर। मान लो ये वाला रेडियस कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन में आइए, उसने क्या बोला, हेमीस्फीयर सो दैट एंड बिलो द फ्लैट स्फीयर, स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। तो यहां तो आप बच गए, ठीक है। स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल ए। अब हम इंटरेस्टेड होते हैं इस एन पॉइंट से इसके सीजी में, इस एन पॉइंट से इसके सीजी में। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, हम किस में इंटरेस्टेड है? पोजीशन 1 में एन जी क्या है? एन जी जो है वो है स्मॉल एच हमारे लिए, और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर ये होल्ड कर जाए, देखिए ध्यान से, इफ दिस होल्ड्स देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, राइट और नॉट? अब स्मॉल ए इज द रेडियस, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ सीजी?
So this height here is 5a by 8 or 3a by 8. Please make me clear about this. और रिकॉल कीजिए कि when I taught you the center of gravity वाला chapter, why I had put so much emphasis over that. क्लियर है? H पता है, स्मॉल r पता है, कहानी हो गई. अब क्या बचा? 5a by 8 equals 1a plus 1a, फिर 3a by 8, ये पोजीशन 1 में, ये पोजीशन 2 में, राइट. यहां पे लिखा. अब आप देख लीजिए कि यहां पे इनइक्वालिटी इज व्हाट. इफ दिस होल्ड्स, जैसे 5 by 8 है तो यहां पे हो गया 2 by 8. दिस इंप्लाइज यहां है 5 by 8 और यहां है, क्योंकि 5 by, ये क्या लिख दिया, 1/h है ना. अरे यार सो 8 by 3a, ये हो गया पॉइंट 1 के लिए, पोजीशन 1 के लिए, और पोजीशन 2 के लिए 5a by 8, पोजीशन 1 में ये वाला. अरे प्लीज गिव मी सम टाइम, आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी. 8 by 5a और सेकंड में है, ये हो गया 1/h, राइट. और सेकंड में अपने पास है 8 by 3a. यहां पर है अपने पास RHS में 2, राइट. 5 by 8 और यहां, सॉरी अब तो ये 8 by 5 हो गया ना. सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व्ड कि 5 by 8 एंड 2, और दूसरा है 3 by 8 एंड 2. ऑब्जर्व कर लीजिए आप कि ग्रेटर देन है कि लेस और इक्वल टू है. किस पोजीशन में अगर स्टेबिलिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो बोलेंगे यस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. इफ सेकेंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. तो अब अगर इसका आपको आंसर लिखना होता तो कितना समय चाहिए था आपको बता दीजिए जरा, अपने मन से बता दीजिए. मेरी बात समझ रहे हैं? सो डिकोडिंग द प्रॉब्लम इज ऑलवेज. अब कर्व्ड सरफेस जब इधर है तो इस वाले पोजीशन के लिए चेक कर लो, और जब ये, सॉरी कर्व्ड ये है, फ्लैट सरफेस ये है. सो फ्लैट वाले में क्या बोल रहा है? इफ कर्व्ड सरफेस दैट इज द फर्स्ट पोजीशन, देन स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल है द इक्विलिब्रियम, so that the equilibrium when the curved surface on the sphere and stable when the equilibrium is unstable. यार ये रह गया. और जब फ्लैट सरफेस है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है. अब अगर आपको इन सीजी के बारे में आइडिया नहीं है, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, don't forget to attend the lectures for the concept talk of our center of gravity. Here I have highly suggested you कि भाई you have to remember some bodies के CG. So if you want from our side कि सर कैसे काम करना है, कैसे इन चीज़ों को और impactful बनाया जा सकता है, for that if you want anything from our side, do let us know. We can come up with the problems as well. So it's enough from my side. Good luck. Keep smiling. अच्छा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर. Thing is, आज अगर हम बात करें, हमने केवल आर्टिकल 1 को समराइज किया है. So what I suggest you, don't forget to do article 2 and 3. That is category 2 and 3. So that will be more than sufficient for you. Okay. So it's enough from my side. Now good luck. Keep learning. Keep smiling.